हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामना है। Hello, my dear students, parents, teachers, and all the well-wishers. Welcome back to another wonderful day. Today, 14th September 2023, Hindi Divas Day. 1949, Indian Constitution has proposed to have Hindi as in Devanagari script as a very important and also you can call it's a language of central government. From 1953 onwards, as Pandit Jawaharlal Nehru has announced, 14th September has to be celebrated as Hindi Divas Day. It's not that you try to have Hindi in every state and impose the language learning, nothing like that, but to spread the goodness of Hindi. Hindi scripts, Hindi lyrics, Hindi talk, Hindi language. It's also beautiful to learn. And Hindi is such a beautiful language. There is swachhata in utterance of Hindi words. And many of the words were derived. Take for example, in Urdu language, in Persian language, in English language, many of the words derived from Hindi. Hindi has lot of prominence, especially in India. Though we are so many states, so many languages, so many religions, but still Hindi is spoken by more than 50% of the population in India. And at schools and at the educational institutions, Hindi is treated as first language, second language, third language. And when you learn Hindi, it's so beautiful. Even the rhymes also, the songs, the poems, beautiful poetry emerged from Hindi. Hindi poetry, Hindi poets and poetess popularly known all over the world for their beautiful lyrics and also beautiful language. Today, I do have many of my teachers and students participating actively to spread this beautiful language of Hindi, the importance of speaking Hindi in India. Many of the government examinations, language is important and it's mandatory. And if you opt for your mother tongue and also Hindi, it fetches you, it gives you more marks and more ranks, there is more prominence for the languages too. And I encourage my students, not only our mother tongue, not only English as international or bridge language, but learning Hindi is also an asset. We should learn, read, write, speak 3 languages, definitely, because language learning is a skill. It improves our brain activity. It helps you to memorize. It helps you to stay active when you learn a new language. 3 minimum of languages we have to read, write, speak, and another 2 at least you should be able to understand and speak, leave alone reading and writing. If a person, on an average in the lifetime of a human being, one person, if they can be exposed to 5 languages, I tell you, you are powerful, strong. You can travel anywhere, you can speak with the people, you can know the native of things, what happens, not only in India, abroad, any foreign language, according to your wish and will. But today, the importance is Hindi language. The prominence of learning Hindi language, reading, writing, speaking, as most of the national channels also, we do have Hindi, and our most popular Bollywood is Hindi. You can enjoy the movies and the songs. And we have wonderful songs
for our motivation, inspiration. As I sang, हम होंगे कामयाब, we shall overcome. हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. Such a beautiful songs. I want everyone to learn. I encourage St. John's community, dear students, parents, and all the well-wishers. Let us celebrate this Hindi Divas and spread this beautiful language among the student community. Be blessed. Have a nice day. कदम टू कदम रेल बनाओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, सबसे आगे वाला इंजन, उसके पीछे सब लग जाओ, रात में जो हिलता जाए, साथ उसे भी लेते जाओ. नमस्कार, मेरा नाम सुफिया. आज आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ. हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए. एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है, एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है. हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे का बिंदी है. हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे का बिंदी है. धन्यवाद. स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान. स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान. हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने. हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने. हर कष्टों को दूर करे हमको मुश्किल आसान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान. स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान, है जो इसकी शान, है जो इसकी शान. हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है. इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है. हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है. इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है. गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान. उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान. हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है. हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है. हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है. इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन. ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन. इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन. इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन. इसके वास्ते
सर है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह यह संवाद के पुल बनकर हमारे सामने आती है। भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। हिंदी के महत्व पर जोर देने के लिए और आगे की पीढ़ी के बीच बढ़ावा देने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस दिन फिर से हम एक बार अपने संस्कृति के जड़ों को देखना और अपने समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथी है। हिंदी को महत्व को समझना चाहिए, हिंदी का आदर करना चाहिए। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी भाषा की पहचान उस भाषा, किसी भी देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। कि देश की एकता उस देश की राष्ट्रभाषा पर निर्भर होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी का साहित्य बहुत ही विस्तृत और प्राचीन है। हिंदी साहित्य के कई कवि हैं, जिनमें एक का नाम मैं अभी बोलने जा रही हूँ, वो है खान खाना अब्दुल रहीम। उनका एक दोहा अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरती की सी रीत है, शीत घाम आओ में, जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, जो रहीम यह देह भैया, जो रहीम यह देह। इस दोहे के जरिए रहीम कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो धरती के समान है। जिस प्रकार धरती बारिश, गर्मी और सर्दी सभी मौसमों को समान रूप में सहन करने की शक्ति रखती हैं, वैसे ही हमारा शरीर ज़िंदगी में आने वाली सुख दुखों को सहन करने की शक्ति रखती है। इसीलिए हम सबको ज़िंदगी के खुशी और गम को सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको हिंदी की प्रसार और प्रसार करते हुए उसको आगे की पीढ़ी तक ले जाना चाहिए। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को पहले मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हम हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। इसके सिलसिले में मैं आपको ये हिंदी भाषा का उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसके विवरण देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी ये शब्द कहाँ से आया और यह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह कहना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ विद्वानों के मत के अनुसार यह हिंदी शब्द सिंधु भाषा, सिंधु नदी, इस शब्द के आधार होकर यह भाषा उत्पन्न हुआ। और कुछ विद्वानों के मत के अनुसार यह हिंदी शब्दांश विदेशों से आए हुए मुसलमानों ने इस शब्द का प्रयोग किया गया। यह भाषा पूर्वी भाषा और प्राकृत भाषा से अंतिम भाषा जो है अपभ्रंश भाषा। इस अपभ्रंश के अंतिम भाषा में अवहट भाषा से इस शब्द का उत्पन्न हुआ और यह भाषा बहुत प्राचीन है और इसके लिए बहुत
प्राचीन इतिहास भी है। और इस देश में, हमारे भारत देश में, इस हिंदुस्तान में इस भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा से लोग और समझने वाले लोग भी और ज़्यादा। यह भाषा बहुत आसानी भाषा है, बहुत आसानी से हम इस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ स्वतंत्र भारत को एक साथ संगठित करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू ऐसे जैसे महान नेताओं ने इस भाषा को सारे भारत लोग और सारे भारतवासी बातचीत करने के लिए वे लोग बहुत इस भाषा के लिए बहुत काम किए। और प्रत्येक रूप से दक्षिण भारत में, हमारे दक्षिण भारत में इस भाषा का प्रचार किया गया। इसके लिए महात्मा गांधी बहुत प्रयास किया गया और इस भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। इसके लिए मैं एक सुंदर गाना, एक ही लाइन, एक ही पंक्ति मैं आपके सामने गाऊंगा। मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलू हिंदुस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गाना हमारे भारत देश की परंपरा, औन्नत्य, इसके बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में भी बता दिए जा रहे हैं। यह हिंदी हमारे संस्कृति का शान है। इसलिए हर एक व्यक्ति हिंदी सीखना है, हिंदी बात करना है, हिंदी में ही रहना है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।